Now discuss about the motion of a charged particle in a uniform इलेक्ट्रिक और इसके ऊपर एनसीईआरटी में दो न्यूमेरिकल भी हैं फर्स्ट चैप्टर में लास्ट एंड सेकंड लास्ट और एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं एक 3 मार्क्स में आ चुका है और बाकी के दो नंबर में आए हुए क्वेश्चन है ये टॉपिक खुद में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशन में पूछा जा चुका है 2 से लेकर 3 मार्क्स के लिए है जाने उसको motion of a charged particle in a uniform electric field is direction of electric field along y direction and is uniform in y direction. A positive charge q moves in x direction with uniform velocity u. It experiences a force due to electric field, so it deviates from its path. Suppose in time t, x is the distance covered by particle in x direction and y in y direction. After that it goes here. In the case of motion in 2 dimensions, particle moves in x as well as in y direction. So in the case of motion in 2 dimensions, so first we discuss about the motion of a charged particle in uniform electric field in x direction. In x direction there is no source of force, that's why acceleration will be 0. Or t equals to x upon u. No acceleration in x direction. Now motion in y direction. y डायरेक्शन लेके चल रहे y equals to u by t plus half a by t square. Here initial velocity will be 0 because initially charged particle moves only in x direction, that's why initial velocity in y direction is equals to 0, but there is acceleration because electric field exists in y direction. तो y डायरेक्शन में फोर्स का सोर्स है इसलिए उस पर एक्सेलरेशन लगेगा 0 प्लस हाफ एम बाई एम टी स्क्वायर और y इक्वल्स एफ हो जाएगा क्यू ई बाई एम टी की वैल्यू लगा दो और y इक्वल्स हाफ क्यू ई बाई एम एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर. ये फॉर्मूला यहां से हम लोग क्यू आई एम निकाल सकते हैं चार्ज टू मास रेशियो. इट इज 2 बाई यू स्क्वायर अपॉन ई एक्स स्क्वायर. ये सारा अमाउंट कांस्टेंट है. अगर y को छोड़ दिया जाए तो यूज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो क्यू बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड्स ऑन द डिफ्लेक्शन डेविएशन इस बात पे डिपेंड करेगा. इसी के ऊपर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और बोर्ड में आ चुका है 3 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है जानो उसको. These are the 2 parallel plates. Equal and oppositely charged.
There are three particles moves in a uniform electric field. The question ये कि you have to find out the sign of the charge 1, 2, 3 and also calculate which charge particle having maximum E by M. ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, 3 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हमें चार्ज का साइन बताने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी. The first charge moves toward the positive plate, second also moves toward the positive plate, and third moves toward the negative plate. It means Q1 या one charge negative, Q2 means two charges also negative, while Q3 means third charge will be positive. इसमें कोई डाउट ही नहीं. डिफ्लेक्शन जिसका ज्यादा होगा उसका Q by M ज्यादा होगा फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन. तो अगर आप डिफ्लेक्शन देखें इनका सबसे ज्यादा इसका आ रहा है. दैट्स व्हाई Q by M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y, हेंस थर्ड चार्ज का Q by M सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम. क्लियर? तो मैं इसी एक्सप्रेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था. आपको केवल अगर ये क्वेश्चन आता तो डायरेक्ट लिखेंगे कि Q by M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेविएशन. नाउ एनसीईआरटी की जो दो क्वेश्चन है लास्ट और सेकंड लास्ट, उनको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो. इसका स्टेटमेंट इस तरह है. A particle of mass m and charge minus q enters the region between the two charged plates initially moving along in the x direction with Vx. The length of the plate is L and a uniform electric field E is maintained between the plates so that the vertical deflection of the particle at the edges of the plate is y equals to q into EL square upon 2m Vx square. यह हमें कैलकुलेट करना है, प्रूव करना है QEL square upon 2m Vx square. जो अभी किया था वही एक्सप्रेशन है ये. एक चार्ज पार्टिकल x डायरेक्शन में जा रहा है with initial velocity Vx. L is the length of the region of the electric field और ये डेविएट हो रहा है और हमें ये प्रूव करना है. जो भी एक्सप्रेशन किया था लगभग वही है, दोबारा कर देते हैं इसको. There is no source of acceleration in x direction, so x equals to uxt plus half axt square 0 प्लस बल्कि इसे वेलोसिटी तो होगी vx into t प्लस 0 हो जाएगा और x यहाँ पर क्या दिया हुआ है l, तो t मिल जाएगा l अपॉन vx. मोशन बाई डायरेक्शन लेके चल रहे हैं, हाफ a by t स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 होगी और ये f by m हो जाएगा और y क्रॉस f हो जाएगा q by m और qe, t की वैल्यू लगा दो और ये प्रूव.
में वैल्यूज गिवन है। ये क्वेश्चन नंबर 33 था एनसीईआरटी का। 34 में वैल्यूज गिवन है, लिखा हुआ है सपोज दैट इन पार्टिकल क्वेश्चन नंबर 33 इन ए यूनिफॉर्म in an electron projected with a velocity vx दिया हुआ है, vx given है, it is 2 × 10⁶ meter per second. If E between the plates separated by 0.5 centimeter, तो D दिया हुआ 0.5 centimeter, ये जो डिस्टेंस इनके बीच में that is D 0.5 centimeter, and इलेक्ट्रिक दिया हुआ 9.1 × 10⁻², न्यूटन पर कूलम। Where will the electron strike the upper plate? तो हमें L कैलकुलेट करना है। ये हम लोग जो डिस्टेंस लेके चल रहे हैं y दैट इज d/2 हो जाएगी, और इसी समय L निकालना होगा, तो L बनेगा 2/m vx² q। और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपको बताइए 9.1 × 10⁻31 kg। सर आपको ये वैल्यूज लगानी थी। ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 34। जब ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो आंसर आपको मिलेगा 1.12 सेंटीमीटर। क्लियर? इसके अलावा कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर या एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, एक नंबर में पूछा गया है 2017 में या 2019 में। में देखो जो पूछा गया, उसका स्टेटमेंट सुने। A point charge plus q is placed at the vicinity of a conducting surface. Draw electric field lines between the surface and the charge. ये रखा हुआ है, कंडक्टिंग सीट है, ठीक, कंडक्टर सरफेस है, और एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है प्लस q। क्वेश्चन ये है, आपको ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन द सरफेस एंड द चार्ज। इस सरफेस और चार्ज के बीच में आपको फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ग्रेडली आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव। इस तरह ये फील्ड लाइंस बन जाएंगी। ये 2017 में आया, ऐसे ही क्वेश्चन 2019 में आया। ये कंडक्टिंग सरफेस है, और इस बार -q चार्ज रख दिया। 2019 में -q चार्ज रखा हुआ। सिर्फ एरो चेंज हो जाएंगे, केवल एरो चेंज होंगे। ये 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखें, और ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है।
show the electric field lines for 2 point charges separated by a distance. एक डायग्राम दिया हुआ है इन figure shows that the electric field lines for 2 point charges separated by a distance. What are the sign q1 and q2? Can you determine the ratio q1 upon q2? एक डायग्राम दिया हुआ है q1 q2 का. ये डायग्राम दिया हुआ है और पूछा क्या गया q1 और q2 के साइन क्या होंगे और कैन यू डिटरमाइन q1 बाय q2. तो q1 से लाइंस जा रही इसका मतलब q1 पॉजिटिव होगा और q2 कैसा होगा नेगेटिव. ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं. अब हमें q1 बाई q2 का रेशियो कैलकुलेट करना है. तो कैन यू डिटरमाइन. यस, आप देखो q2 पे लाइंस कितनी जा रही 4 + 4 8. तो यहां से कितनी निकल रही 8 + 8 8 ही होगी और 8 ही होगी. इसका मतलब तो ये चार्ज है q1 वो मैग्नीट्यूड में q2 से डबल है. इसका मतलब ये हुआ q1 upon q2 = 2 डबल हो गया. क्लियर. तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एक एक नंबर में. समझ गए होंगे. अगले वीडियो हम लोग लेके चलेंगे फ्लक्स एंड गाउस थ्योरम. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 101% एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है.